So here now we are starting the next chapter, chapter number 4, elasticity of demand. This chapter is after theory of demand, because in the theory of demand we study that there is an inverse relationship between price and demand, keeping other factors constant. But elasticity of demand is somehow in depth of the theory of demand, which suggests that how much we can change the demand with the change in the price of the commodity. Okay. In the simple language, we can say that the responsiveness of change in demand the responsiveness of change in demand with respect to change in price is known as elasticity of demand. मतलब कि prices के change होने पर demand कितना change हो सकती है उसको हम बोलते हैं elastic demand ना. जैसे कि अगर प्राइस के चेंज होने पर हम डिमांड चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द डिमांड, है ना, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो डिमांड होती है इलास्टिक. जैसे कि गोल्ड की डिमांड है, फ्रूट्स की डिमांड है, महंगे कपड़ों की डिमांड है, अगर उनके प्राइसेस बढ़ते हैं हम डिमांड कम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम हो सकता है कि ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है कि भैया हमें वो चीज खरीदनी है ना. लेकिन ऐसी भी कमोडिटीज होती हैं जिनकी की प्राइसेस के बढ़ने पर हम डिमांड कम नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल, घर घर में राशन लाना है, दवाइयाँ लानी है, स्कूल की फीस देनी है ना. तो ये जो डिमांड होती है इसको हम कम नहीं कर सकते हैं, तो ये डिमांड क्या कहती है, लेस इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक मतलब जो चीज में खिंचाव होता है ना, जो चीज खिंचाव यानी कि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है ना. जैसे सॉक्स हम पहनते हैं ना, वैसे वो बिल्कुल छोटी से, लेकिन जब उसे वेयर करेंगे तो वो हमारी लेग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, तो वो क्या हुई, इलास्टिक ना. और जो बिल्कुल खराब हो जाती है सॉक्स, वो बिल्कुल इलास्टिक ही, मतलब बिल्कुल गिरती रहती है, बेकार हो जाती है ना. तो इलास्टिक का मतलब होता है यानी कि जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और इन इलास्टिक जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. तो इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ कि डिमांड जब प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड. और अगर डिमांड प्राइस के चेंज होने से चेंज हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं inelastic demand या less elastic demand. Okay, just now here I'm sharing the screen. So elasticity of demand means that responsiveness of change in demand due to, who is writing over here, due to change in price of the commodity. ओके, सो यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्ड कर रही है डिमांड प्राइसेस के चेंज होने पर, वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, नाउ आफ्टर दिस we are heading towards the some in your book it is given about this percentage method we will study about afterwards. These are the formulas for calculating the elasticity of demand, but first of all you should know what is the meaning of the, or what are the types of the elasticity of demand. So here now our next topic is the types of the elasticity of demand. This I'm explaining you on the board, as in this diagrams I have to show. There are 5 types of elasticity of demand. We are heading towards the types of elasticity of demand. 5 types of elasticity of demand. The first type of elasticity of demand is perfectly elastic demand. Now, perfectly elastic demand means that the prices remain same and the demand can be changed to any extent. Demand same prices पर बढ़ भी सकती है, demand same prices पर घट भी सकती है, और demand चाहे तो जीरो भी हो सकती है. उसको हम बोलते हैं perfectly elastic demand ना, जिसकी हम कहते हैं ना एग्जांपल, this is perfect, यानी कि हर चीज इसको आती है, सारे के सारे काम आते हैं. तो ये क्या हुआ, perfect, is a perfect person, is a perfect lady, is a perfect man. Okay, so यहाँ पे perfect का मतलब क्या हुआ कि prices सेम है, डिमांड कैसे ही चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, 1000 भी पहुंच सकती है, कुछ भी हो सकती है. Let us see the schedule. This is price, this is demand. And with the help of schedule, it becomes easy to understand. This is 20. Not visible properly. Not able to see properly? Okay, just Yes, wait. ma'am.
So over here the prices are same and demand is increasing. Same prices पर demand बढ़ती जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? Perfectly elastic demand. Just see the diagram for this. Here we are showing on the y-axis price and on the x-axis we are showing the demand. Okay, so prices are taken as 10, 20, 30, 40. This is 100, 200, 300. Okay. Now I'm 30. This is 100, 200, 300. Like this way. This is known as the perfectly elastic demand, and this is the demand curve. So this demand curve is parallel to the x-axis क्योंकि यहाँ पर बेटा prices same है और same prices पर demand कितनी ही change हो सकती है. ये हमारा पहला point that this is the perfectly elastic demand. This is purely imaginary concept बेटा. आज के टाइम पे आपको इस एग्जांपल नहीं मिलेंगे. Even अगर कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है ना तो प्राइसेस अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, भले ही वो चीज कितनी अवेलेबल हो ना, लेकिन प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. आज के समय पे आपको एग्जाम्पल नहीं मिल सकते हैं. So this is the first type of elasticity of demand known as the perfectly elastic demand. ये disturbance कहाँ से हो रही है इतनी? Okay, now the perfectly elastic demand. Again I'm telling here the prices changes and demand remain constant is known as the perfectly inelastic demand. Demand चाहे बढ़े, demand चाहे घटे, prices चाहे बढ़े चाहे घटे, demand change नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं perfectly inelastic demand. यहाँ पे कर्व कैसे रहता है? Parallel to the y-axis, कि इसे हम बोलते हैं perfectly inelastic demand. और ये क्या चीजें होती हैं जो कि चीजें हमारी utmost need की होती है, जरूरत की होती है, भले prices बढ़े चाहे भले prices घटे, इनकी demand कम नहीं होती है. Okay, now we are heading towards the third one. Now the third one factor affecting types of elasticity of demand is highly elastic demand, or also known as a more elastic demand. Highly elastic demand means when percentage change in demand is more than percentage change in price is known as the highly elastic demand. यानी कि जितना हमारा percentage change in demand है वो percentage change in price से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं highly elastic demand. अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिमांड चेंज हुई है वो कितना चेंज हुई है? 100 से 200 हो गई है. हाँ, और उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस कितने चेंज हुए हैं? प्राइसेस चेंज हुए हैं, देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है? 10 का. देखिए यहाँ पे जैसे प्राइसेस में जो चेंज आया है 20 का 50% कितना हुआ है? यहाँ पर 10 रुपये. 50% प्राइसेस में चेंज है और डिमांड में कितना चेंज है? डिमांड में चेंज है 100%. यानी कि डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइसेस में चेंज कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड. यानी कि प्राइसेस थोड़े से चेंज होंगे, डिमांड उसके अकॉर्डिंग ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, उसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड. दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड, दिस इज 10, 20, 100, 200. At prices 20, the demand was 100. At prices 10, the demand was 200. Okay. You have to show less change in price and more change in demand. Okay. Like this way. देखिए prices में change कम है, demand में change ज़्यादा है. ये जो demand का आपका बनेगा ये, this is known as the highly elastic. थोड़ा सा flatter बनेगा. बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं बन रहा है, थोड़ा सा फ्लैटर बन रहा है. क्यों? क्योंकि प्राइसेस में चेंज कम है, डिमांड में चेंज ज्यादा है. इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. ये कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1, जबकि प्राइसेस में चेंज ज्यादा है, सॉरी डिमांड में चेंज ज्यादा है और प्राइसेस में चेंज कम है. दैट इज नोन एज द हाईली इलास्टिक डिमांड. Now, ये क्या चीजें होती हैं? जैसे कि जो चीजें जिनके हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं ना, या जो चीजें हमारी मोस्टली लग्जरियस आइटम होती हैं ना, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है, हम डिमांड ज्यादा चेंज, जैसे अभी सर्दियां जैसे आएंगी वैसे फ्रिज की जो लोग खरीदना शुरू कर देंगे, प्राइसेस गिरेंगे, लोग खरीदना शुरू कर देंगे. एसी ना लोग खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें प्राइसेस गिरते हैं और डिमांड में बड़ा चेंज आता है. गोल्ड है, थोड़ा सा प्राइस में अंतर होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये वो चीजें होती हैं. दिस इज नोन एज द हाईली इलास्टिक demand. Okay. Now the fourth, in the less elastic demand, what happened? There is less change. There is more change in price and less change in demand. Prices कितना डिक्रीज हुआ है? 50%. हमने पीछे देखा था 50% प्राइसेस में डिक्रीज है, 20 से 10 हुआ है. और ये कितना परसेंट है? 20 कितना बढ़ा है? ये 20% बढ़ा है सिर्फ ना. 20 यूनिट बढ़ा है डिमांड को, तो दिस इंक्रीज इन द 20%. यानी कि 50% चेंज डिमांड में है और 20% चेंज
50% चेंज प्राइस में है और 20% चेंज डिमांड में है, इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। यानी कि जब प्राइसेस में चेंज ज्यादा होता है, डिमांड में चेंज कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड प्राइसेस के अकॉर्डिंग कितना चेंज करेगी, कितनी परसेंटेज में चेंज करेगी। This is price, this is demand, ये है 10, 20, 100, 150, 200। वैसे कुछ शो कर दिया, 20 पर है ये 100 और 10 पर कितना है ये 120। 120 यहाँ तक आया। तो देखिए प्राइसेस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है, इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। और इसके कर्व्स कैसे बनते हैं, स्टीपर। इसको हम शो करते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये क्या चीजें होती हैं, जो कि चीजें हमारी नेसेसिटी की होती है ना, इनकी हम डिमांड कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि आपको घर का कुकिंग ऑयल लाना है, पेट्रोल खरीदना है, तो उसमें क्या है कि आप सोचते हैं भैया महंगा, चलो कम खरीदेंगे, बाइक कम चलाएंगे, गाड़ी कम चलाएंगे ना। यानी कि जिसकी हम डिमांड कम करते हैं लेकिन ज्यादा हम डिमांड कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारी नेसेसिटी की होती हैं, वो कहलाती है लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब लास्ट इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Here what happened, there is equal change in demand and price। प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज है। 20 पर डिमांड है 100 और 10 पर डिमांड है 150। 50% प्राइसेस में डिक्रीज है, 50% डिमांड में इंक्रीज है। इक्वल चेंज है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, प्राइस सॉरी दिस इज 10, 20, 100, 200। 20 पर कितना है ये 100 और 10 पर कितना है ये 150। ठीक है, तो जितना चेंज यहाँ पर हमारा प्राइसेस में है, सेम चेंज डिमांड में होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसका कर्व आपका लगभग जो है, अगर मेजरमेंट सही लिया जाए स्केल से, तो बिल्कुल प्रॉपर इसके पैरेलल आता है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। किसके पैरेलल होता है, मेरे इसके, इन दोनों के पैरेलल, मतलब इनके बीच में बनता है ये, तो उसके दैट दिस इज नोन एज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये क्या चीजें होती हैं, जो कि जैसे चीजें होती हैं हमारा ये घर के फ्रूट्स हैं ना, कपड़े हैं, जिनकी कि हम डिमांड प्राइसेस की चेंज होने पर इक्वल चेंज ला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।